मॉनसून सत्र हाल ही में खत्म हुआ, उसके पश्चात आप सबके सामने हम सब लोग आए हैं, जहां देश की जनता इंतजार करती है कि उनसे जुड़े हुए विषयों को सदन में उठाया जाए। वहीं पर विपक्ष ने सड़क से संसद तक सिर्फ अराजकता अराजकता और अराजकता, ये विपक्ष का एकमात्र एजेंडा रहा। न जनता का हित, न टैक्स पेयर के पैसे की फिक्र और न ही संवैधानिक मूल्यों की गरिमा की फिक्र थी इनको। और जो घटा वो बहुत शर्मसार था, निंदनीय था। और एक घड़ियालू आंसू बहाने की बजाय इनको तो देश से माफी मांगनी चाहिए। इसको विस्तार में चर्चा करने के लिए संसदीय कार्य मंत्री आदरणीय प्रहलाद जोशी जी आपके पहले बात रखेंगे, और माननीय पीयूष जी अपनी बात रखेंगे, हमारे नेता सदन राज्यसभा। लेकिन जिस तरह का काम करने का तरीका या काम में रुकावट बनने का काम विपक्ष ने किया है, उससे उनको देश से माफी मांगनी ही चाहिए। मैं माननीय प्रहलाद जोशी जी से निवेदन करता हूं कि आप सबको संबोधित करें। Friends, as you all know, yesterday monsoon session of the parliament was concluded. It is most unfortunate that पहले दिन से ही, even when the all-party meeting was going on, where Honorable Prime Minister attended the meeting and we all were there, from that day itself, that's on 18th, indications were there that we will not allow the house to run. And that was amply made clear. उसको पूरा खुलासा कर दिया टीएमसी वाले ने और कांग्रेस। This session is meant for washout. This was very clear. And at least to acknowledge their sincerity, honesty in one thing, that they came and told us, we are for washout. In spite of that, our senior leaders and myself as Parliamentary Affairs Minister and our leader in Rajya Sabha, Shri Piyush Goyal ji, many a times we had a talk with them. And even on the first day itself, we made them request, हमने एक उनको निवेदन किया कि कम से कम शुरुआत के दिन जो है मंत्रिमंडल का जो रीशफल हुआ था, मंत्री परिषद का मेंबर्स को इंट्रोडक्शन करने के लिए एक अवसर दे दो। इवन दैट वाज नॉट अलाउड। एंड उसके बाद चर्चा हुआ, चर्चा में बीएससी हुआ, दोनों सदनों का बीएससी हुआ। बीएससी में हमारे ऊपर हमको ये डिमांड, हमारे सामने स्पीकर के सामने, चेयरमैन के सामने ये डिमांड रखा गया कि शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन होना चाहिए। स्वयं चेयरमैन ने अनाउंस किया इकोनॉमिक प्राइस राइज, जो उनका डिमांड था उसको एडमिट किया हूं। कोविड का उनका डिमांड था, दैट वाज आल्सो एक्सेप्टेड इन द बोथ द हाउस। एग्रीकल्चरल का बारे में था, that was also accepted. By and large, all parties, including small, big, and everybody, these were the three major issues on the very first BSc, and that was accepted, that was admitted. And in spite of that, then they started with Pegasus and other things, and suo motu statement was made. I am trying to make out a point that the decision, it was pre-decided by the Congress and its friendly party that we should not allow the parliament to function this time, and we should take it forward for a washout. This was their decision. That's why I am trying to count the chronology of the events. In that, first they did not allow introduction of ministers. Then suo motu statement हमने करा दिया,
and clarification, presiding officers allowed the clarification. They did not seek any clarification. बाद में आया, राज्यसभा में हमने चर्चा शुरू करने का कोशिश किया, तो 4 तारीख को, and it is a unanimous resolution of the both the houses during 50th year of 50th year and 60th year that there should not be disruption, all those things. It's okay, but in spite of all those things, they did not allow even the very important bills to be discussed. Every day we used to request them, these are the bills today. And now they are telling that bills were passed in din. I am not going before 2004, but 2004 to 2014, how many bills they have passed, even media, one of the media report is also there. I am not comparing. At that time, even discussion with the oppositions were not properly held. I was also MP at that time. In one term, Sri Dharmendra Pradhan ji was also there, Anurag ji was also there. Not even discussed, passed in din. The important bill like bifurcation of Andhra was also passed in din. But I don't want to compare with that, but daily we try to them. हर रोज हम बात करने का कोशिश की कि चर्चा करेंगे, लेकिन आज ये बोल रहे हैं और कल भी जो कुछ भी हुआ माननीय पीयूष जी उसके बारे में डिटेल में बताएंगे। 4 तारीख को 6 members were named and they tried to forcibly open the door by breaking the glass. शीशा तोड़ के अंदर आने का कोशिश किया। एक महिला कर्मचारी को घायल हो गए एंड शी हैज गिवन इन राइटिंग दैट मुझे ऐसी घटना में घायल हो गए, एक्शन होना चाहिए। देन डे बिफोर यस्टरडे टेबल के ऊपर चढ़ के, ऐसे तो उस दिन कुछ बिल भी पारित नहीं हो रहा था जी। इट वॉज ए डिस्कशन ऑन फार्मर्स. It was not even a bill. It was just discussion. Nothing could have happened. And even when they requested, we don't want to participate in discussion. Myself and Piyush ji, we decided that we should stop our participants, and I told Sri Vijaypal Tomar, who was speaking on behalf of Bharatiya Janata Party, to stop his speech because they were telling we don't want. Then BJD Prasanna Acharya started speaking and he spoke for 10 minutes and they were not ready to wait for 10 minutes and immediately disruption was started and some of the MPs, they climbed the table and they are feeling proud themselves. अभी उनको लग रहा है कि हम बहुत अच्छा काम किया है, वो वीडियो शूटिंग करा के ट्वीट करा दिया है. And you see the level of their thinking. Actually, video shooting inside both the chambers, it is not allowed. Even when parliament is not functioned, at that time also by rule it is not allowed. Even then, video shooting was made as if some they have fought freedom fight like that, they have circulated it. And after that, yesterday, from morning we were requesting them. If you allow the discussion, we don't have any problem. We will run up to Friday. Not only Friday, if you want more discussion, we are ready even on Monday. This with all my responsibility at my command, I am telling, in presence of opposition leaders, myself and Sri Piyush ji, we made an offer. We are ready even up to Monday. Not curtailing का दूर बात है. हमने ये कहा मंडे तक ले जाने के लिए तैयार है, डिस्कशन नहीं करेंगे.
तो मैंने बोला आज कम से कम हमारा बिल पारित करने के लिए आप कोऑपरेट करो. We were threatened saying that if you try to pass the bill, the morning itself we were threatened. I am using the words very carefully. We were threatened if you try to pass the bill, insurance bill and other bill by evening, after the passage of OBC bill, then more disastrous situation you can see in the evening. What had happened yesterday, that was climbing on the table. More than that, it is going to happen. This was clearly told. In unambiguous term, it was told to us. And now they are talking that bill were passed in din and महिला मार्शल को, महिला एमपीज को मार्शल ने, मेल मार्शल ने हल्ला करने का कोशिश किया. तो अभी कई मीडिया में भी चल रहा है क्या हुआ है, कैसे मार्शल को, लेडी मार्शल को, ये सब चल रहा है. तो हम तो अब उसमें बात डिटेल में मैं जाना चाहता हूं. और राहुल गांधी जी स्टेटमेंट दिया है एंड ही हैज टोल्ड दैट ऑल सेशन मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी. उन्होंने क्या क्या किया, उन पार्टी ने क्या किया, लोकसभा में, राज्यसभा में कैसे उनका व्यवहार था, ये सब देश देख रही है. आई डिमांड if they have little sense of responsibility and democracy, they should apologize to the country. And also, we demand, Chairman, that there should be strict action on them and this should not be repeated. Whichever party may be ruling, this should not be done. And people who are teaching us the lesson what is happening in West Bengal, what is happening in other states, they are not even running the house. In one day, in Rajasthan, 13 bills were passed in 1 hour. This is the situation in the country. And even today, government is ready to listen to their constructive suggestions. And Parliament is for the debate. And basic duty of the Parliament is legislation. And a new story is trying to be built up now. That is, you are just passing the bills. Bill is not government and discussion is not of opposition. Both belongs to opposition and government. Whenever a bill comes, it is for the welfare of the people. If you have got suggestion, you should make it with us. Instead, they are telling you are only passing bill. The basic duty of the Parliament is to pass the bill, and we tried our level best to convince them. Detail, Shri PVG will address. I would only like to tell, even after 7.5 years, that is in 2014 and in 2019, they are not ready to digest the people's mandate. Especially Congress feel that ये हमारा सीट था, ये मोदी जी आके छीन लिया. This is our birthright. Because of this mentality, these things are happening. I strongly condemn their behavior. And I also demand the action against the people who have climbed the table and who have tried to manhandle marshals. And there should be a strict action, and action should be such that nobody should dare to do such action in future. Thank you. Now, धन्यवाद प्रहलाद जी. जैसा माननीय प्रहलाद जी ने कहा कि विपक्ष ने तो माननीय प्रधानमंत्री जी को अपने नए मंत्रिमंडल का भी परिचय कराने का अवसर तक नहीं दिया. मंत्री जो स्टेटमेंट देना चाहते थे उसको फाड़ने का काम भी किया. यहां तक कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने नए मंत्रियों को कहा कि आप राज्यसभा में जाके डिबेट्स को जरूर सुनिए, बहुत क्वालिटी डिबेट्स होती हैं, आपको वहां समय लगाना चाहिए. लेकिन जब हमारा अनुभव आया, जब मंत्री वापस आकर मिलते हैं कि ये टेबल किस लिए है, नाचने के लिए है, किसका काम कुछ और है. क्या इसी राज्यसभा में आने के लिए कहा था जहां पर ये सब हुआ है, जहां लोकतंत्र शर्मसार हुआ, अपमानित हुआ. तो दुनिया के बड़े सबसे लोकतंत्र में राज्यसभा में जो घटा, और इस पे माननीय पीयूष जी हमारे नेता सदन है, राज्यसभा के नेता है, मैं इनसे अनुरोध करता हूं कि कृपया करके आप सबको संबोधित करें. धन्यवाद. मित्रों, आज बहुत पीड़ा के साथ हम सब आपके समक्ष आए हैं. जो बहुत ही दुखद, शर्मनाक घटनाएं
हमने लगातार इस सेशन में देखी, दोनों सदनों को चलने नहीं देना और खास तौर पे उच्च सदन जो राज्यसभा में जो व्यवहार रहा है विपक्ष का, उससे आज पूरे सदन की गरिमा भी टूटी है, गिरी है। चेयरमैन के ऊपर अनाप शनाप बेबुनियाद आरोप लगाकर चेयरमैन की डिग्निटी को भी इन्होंने बहुत हर्ट किया है और एक प्रकार से न्यू लो इन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का प्रदर्शन हमने राज्यसभा में प्रमुख विपक्षी दलों के व्यवहार में देखा। इनकी मंशा तो शुरू से स्पष्ट थी, जैसा प्रहलाद जी ने कहा कि किसी तरीके से इस सेशन को वॉश आउट करना है, लेकिन सिलेक्टिवली चूज करते थे। जब चाहते थे अपनी बात रखना तो कुर्सियों पे चले जाते थे, सिलेक्टिवली डिवीजन भी मांग लेते थे सडनली। ये अलग बात है कि सडन डिवीजन मांगने पे भी उनका पर्दाफाश हो गया और बड़े ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी से सबके समक्ष आ गया कि पूरी मेजॉरिटी चाहती है कि हाउस चले, पूरी मेजॉरिटी सरकार के पक्ष में है, पूरी मेजॉरिटी चाहती है कि डिबेट हो, डिस्कशन हो, कार्रवाई सुचारू रूप से चले। लेकिन विपक्ष इस बात को हजमा नहीं पाया कि उनके बात से देश पूरी तरीके से उनसे कुछ अपेक्षा ना रखते हुए अब उन्होंने गिव अप कर दिया इस ऑपोजिशन के ऊपर। प्रहलाद जी ने सही कहा, एक के बाद एक व्यवहार देखिए, मिनिस्टर के हाथ से छीनना कागज और सस्पेंड होने के बाद हमने कहा अपोलोजाइज करिए, तो हम चेयर से रिक्वेस्ट करेंगे कि आपको वापस ले लिया जाए, तो स्पष्ट बोल दिया कि ही विल नॉट अपोलोजाइज टू द चेयर। 6 MP सस्पेंड होने के बाद एक कांच का शीशा पे मोबाइल से तोड़ के चेंबर में अंदर जबरदस्ती घुसने की कोशिश करना और एक महिला मार्शल को चोट लगना, कांच उनके गर्दन पे जाना, एक बहुत ही दुखद घटना जिसपे हमने चेयर से रिक्वेस्ट करी थी कि इस पे एक्शन लिया जाए। और तो और 9 तारीख को जो भद्दा प्रदर्शन उन्होंने टेबल पे नाच के, और एक तो इतना बड़ा रूल बुक मोटा चेयर के ऊपर फेंका गया कि अगर उस समय चेयर पे कोई बैठा होता या सेक्रेटरी जनरल नीचे बैठे थे उनको लगता तो घायल ही नहीं होते। बहुत बुरी तरीके से कातलाना हमला किया गया चेयर और सेक्रेटरी जनरल पे, और उसके ऊपर भी हमारा अनुरोध था, अभी चेयरमैन साहब को मिलके आए हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और अपोलॉजी तो छोड़िए, वो तो और सीना चौड़ा करके कह रहे हैं कि हम 100 बार और ऐसी घटनाएं करेंगे। ये पार्लियामेंट्री डेकोरम, ये पार्लियामेंट्री शिष्टाचार का जो प्रतीक आज कांग्रेस के, आम आदमी पार्टी के, तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने देश के समक्ष रखा है, मैं समझता हूं पूरे सदन की गरिमा, सदन की कार्रवाई के ऊपर एक जनता के बीच में बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया विपक्ष ने कि वो आगे देश को किस दिशा में लेके जाना चाहते हैं, हमारे युवा युवतियों को क्या दृश्य दिखाना चाहते हैं भारतीय पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का। जैसा प्रहलाद जी ने कहा, लगातार हम चर्चा के लिए तैयार थे। आप सबने देखा कोविड की सुचारू चर्चा हुई, तय हुआ था उसके बाद शाम को सभी पक्ष के नेता माननीय प्रधानमंत्री जी की मीटिंग में आएंगे। सभी आए, कांग्रेस ने उसका भी बहिष्कार किया, प्रॉमिस करके कि हम शाम को आएंगे अगर आप डिबेट करा दो। और बाकी सभी विपक्ष के नेताओं ने खुलेआम तारीफ की माननीय प्रधानमंत्री जी के, सराहना की कि कैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट कोविड की लड़ाई में देश को संभाला, देश को दिशा दी। और कितनी सारी जानकारियां उसमें जब विपक्ष के नेताओं ने भी देखी तो उन्होंने कहा ये पूरे देश के समक्ष रखी जाए। हमें भी ध्यान नहीं था, इतने सारे काम केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, अलग अलग लोकल बॉडीज, एनजीओज, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस, एक मानो पूरे देश ने कोविड की लड़ाई एकजुट होकर लड़ी थी, उसका प्रमाण उस दिन विपक्ष के भी सामने रखा गया।
4 तारीख की घटना, 9 तारीख की घटना, उसके बाद जब ओबीसी के ऊपर बिल पे चर्चा हुई तो आपने देखा कितनी अच्छी सुचारू चर्चा हुई। इसी तरीके से हमारी उम्मीद थी कि हर बिल के ऊपर चर्चा हो, उसके बाद पास हो, लेकिन जिस प्रकार का व्यवहार, जितना शोरगुल, अलग अलग प्लैकार्ड्स, और एक मुद्दा भी कोई तय नहीं कर पा रहे थे कि किस पे बातचीत करें। एक पार्टी का अलग, दूसरे का अलग, तीसरे का तीसरा, कोई ठीक तरीके से संतुलन विपक्ष के बीच में नहीं था और एक क्लियर कट कॉम्पिटिटिव ऑपोजिशन का दृश्य देश के सामने दिखा। एक आम आदमी पार्टी के सदस्य टेबल पे चढ़ गए तो अरे उसमें पंजाब में हमारा क्या परिणाम होगा, तो 2 कांग्रेस के सदस्यों ने चढ़ना जरूरी है। और इस प्रकार की कॉम्पिटिटिव ऑपोजिशन के कारण पूरे सदन की और देश के जनता के बीच जो अपमान किया गया है चेयर का, जो सदन का अपमान किया गया है, उसके लिए माफी मांगना तो दूर और सीना चौड़ा करके आज विपक्ष सामने आ रहे हैं। दिस इज अ क्लियर साइन कि विपक्ष इज ट्राइंग टू प्रीएम्प्ट एनी एक्शन बिकॉज ऑफ देयर मिसकॉन्डक्ट, अनरूली बिहेवियर एंड the threatening approach of the opposition, the way they manhandled the security personnel of the parliament and the marshals, the way the lady marshal was manhandled by 2 honorable MPs from the Congress party, the way they were trying to pull the male marshals by the neck and damage the property of the house, that the way they attacked the table, the way they attacked the chair, it was a shameful disgrace in the parliamentary history of India and a clear sign that they are trying to divert and deviate from the main issue, which is their conduct in the house, their misconduct in the house, to preempt any action that will evidently follow from the records of the House. We had gone today, all of us have met the Honorable Chairman and the Deputy Chairman and made an earnest appeal, which I had also placed before the Chair in the House yesterday, that the strongest action should be taken on this deplorable misconduct and physical manhandling and assault on the parliamentary staff, parliamentary security, which was trying to protect the table of the House, which was trying to protect the chair. आखिर सिक्योरिटी स्टाफ तो किसी पक्ष का नहीं होता है, उसका काम तो चेयर और टेबल और सदन और पार्लियामेंट की सुरक्षा करना है। इनसे ये भी नहीं बर्दाश्त हो रहा था कि मात्र 12 महिला मार्शल्स और 18 पुरुष मार्शल्स, कुल 30 मार्शल्स, 18 मेन पुरुष, 12 महिलाएं, सिर्फ 30 मार्शल्स डिप्लॉय हुई थी और उतनी जरूरी थी क्योंकि इतने बड़े प्रहार के सामने, और ये प्रहार 9 तारीख को आप सबने देखा था, टेबल की सुरक्षा, चेयर की सुरक्षा के लिए ये तैनात थे। सभी पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी सर्विस के मार्शल्स और स्टाफ थे। अनाप शनाप झूठे आरोप आज लगाने की कोशिश कर रही है कि आउटसाइडर्स हु आर नॉट पार्ट ऑफ पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी वो ब्रॉट इन। ये सब मेन इश्यू से डाइवर्ट करके उनके ऊपर एक्शन ना हो, इस डर के कारण विपक्ष ने आज ये पूरा नाटक रचा। एक प्रकार से पूरे विपक्ष की हम निंदा करते हैं कि उनकी मंशा इस सदन की गरिमा गिराने की रही। शुरू से उनकी मंशा थी कि इस सेशन को चलने ना दिया जाए। शायद ओबीसी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल भी एक राजनीतिक मजबूरी में उन्होंने सदन को चलने दिया, और अगर इसी प्रकार से पूरे 19 दिन सदन चलता तो देश में अच्छी सार्थक चर्चा के बाद बिल पास होते। यही सरकार की उम्मीद थी और आगे भी हमारी यही उम्मीद रहेगी। प्रहलाद जी ने कहा इतना आउटरीच का हमने कोशिश की, इतनी बार चर्चा की कोशिश की, पर उन्होंने स्पष्ट कर दिया था आप जो चर्चा करो, हमारा रवैया तो हाउस नहीं चलाने देंगे। कल भी जब उन्होंने रिक्वेस्ट की, कहा गया कि उन्होंने कहा कि हमने रिक्वेस्ट की थी कि ये बिल को
11 तारीख के बदले 12 तारीख को ले लिया जाए। हमने कहा 12 तारीख को ले लेंगे, जैसा प्रहलाद जी ने कहा। फ्राइडे इवनिंग 5 बजे प्राइवेट मेंबर बिल के बाद ले लेंगे, मंडे ले लेंगे, लेकिन आप एश्योर करिए कि सुचारू रूप से सदन चलेगा। तो उस पर स्पष्ट कहा गया नहीं 9 तारीख तो ट्रेलर था, अब तो उससे भी ज्यादा बड़ी घटना होगी अगर आप ये बिल लाए। तो ये बाई वे और ये हाईवे का जो विपक्ष का रवैया है, इसकी हम घोर निंदा करते हैं और मैं समझता हूं पूरा देश इसकी निंदा करते हैं। ये विपक्ष ने समझना पड़ेगा कि आज पूरा देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता से, उनके दिन रात 24 घंटे काम करने के प्रयासों से, देश की अर्थव्यवस्था को फिर एक बार तेज गति देने के काम से, देश को आत्मनिर्भर आत्मविश्वास से भर के एक आगे अगले 25 वर्ष का जो समय हम आजादी के 75 वर्ष मना रहे हैं, हम सब ने यह तय किया है कि कैसे इस देश को अगले 25 वर्ष में जब आजादी के 100 वर्ष पूरे होते हैं तब एक विश्व शक्ति, एक ग्लोबल सुपर पावर के रूप में बनाने के लिए पूरा देश जो जुट गया है, उससे शायद विपक्ष डर गया है और उस डर के कारण ये डाइवर्ट करने की कोशिश, झूठ के आधार पर देश को गुमराह करने की कोशिश, मीडिया को गुमराह करने की इस कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों की जो व्यवहार रहा है, उसको मैं समझता हूं पूरा मीडिया और पूरा देश ने देखा है। हम उसकी निंदा ही नहीं करते हैं, हम डिमांड करते हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, उच्च स्तरीय कार्रवाई की जाए और जितने लोगों ने इस प्रकार का व्यवहार किया है सदन में, चाहे वो 4 तारीख को हो, 9 तारीख को हो, 11 तारीख को हो, एक होलिस्टिक स्टडी करके इनके मिसकॉन्डक्ट को, इनके व्यवहार को देश के समक्ष भी लाया जाए और इन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। धन्यवाद। ऑफिशियल जो हमारा बिल वगैरह पारित होगा, एक स्टेटमेंट हम आपके लिए इधर दे रहे हैं। और दूसरी बात, जिसका यूपीए कालखंड में जो अभी हमको पाठ दे रहे हैं, कितना बिल दिन में पारित किया, बिना चर्चा किया, क्या क्या हुआ था, ये सब हम आपको सर्कुलेट कर रहे हैं। We'll take questions now, one by one, please. यहाँ से शुरू कर लेते पहले। That is the prerogative of the chair. प्रिंसिपल डीजी वहां से अलाउ करती है। This side, please. माइक ले लीजिए। बावजूद उसके सरकार की तरफ से ऐसे मेंबर्स को सस्पेंड करने के लिए कोई मोशन लेके नहीं आया गया, इसका कोई खास कारण? उस प्रकार का मोशन लाने के लिए समय नहीं था। मैंने जैसे कल अपने वक्तव्य में भी कहा, अब ये रूल 255, 256 जिसमें उस प्रकार का मोशन आता है, उनका जो भद्दा व्यवहार था वो उसके भी बहुत आगे पार चले गया था। तो जिस प्रकार से सोमनाथ चैटर्जी जी के समय एक कमेटी बनाई गई थी उच्च स्तरीय, वो मिसकॉन्डक्ट इतना गहरा था कि वो नॉर्मल पार्लियामेंट्री प्रोसीजर प्रैक्टिस के बदले इस पे एक सीनियर मेंबर्स की उच्च स्तरीय कमेटी बना के हमने अनुरोध किया माननीय चेयरमैन से कि सख्त से सख्त कार्रवाई ली जाए। सर, राहुल गांधी से जब हमारी बात हो रही थी, उनका कहना था कि हमें संसद में बोलने नहीं दिया गया, इसीलिए वो सड़क पे आए हैं। तो आखिर ये बताइए कि कोविड की चर्चा कैसे हुई? आखिर ये बताइए ओबीसी का बिल कैसे इतने सुचारू रूप से चर्चा हुई? आप ये बताइए, बीच में डिवीजन मांगना था तो सब अपनी कुर्सी में बैठ गए। वो खुद डिस्टर्ब करें, वो खुद हाउस चलने ना दें, मार पीट पे आ जाए, तोड़ फोड़ पे आ जाए, कागजों की बौछार बिछाए, प्रधानमंत्री को परिचय न करने दें अपने नए मंत्रिमंडल का, जो कभी इतिहास में नहीं हुआ। इस प्रकार के व्यवहार के बाद ये कहना कि हम बोलने नहीं दे रहे हैं, आखिर एलओपी जब खड़े हुए वो बोले। उसके अलावा फार्मर्स के ऊपर चर्चा शुरू हो गया था जी। यू प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट राहुल गांधी से। Probably sometimes he misses the link. I don't know what is the reason. Many a times he misses the link. I don't want to say anything more than that. Farmers, it was started. Then it was stopped because of the insist of the Congress and TMC. नहीं, और उनकी मंशा देखिए, किसानों के विषय तक पे
चर्चा करने को तैयार नहीं है। और वो हो जाती तो अगली हम आर्थिक अर्थव्यवस्था पे भी चर्चा करने का चेयरमैन ने तो एक्सेप्ट कर लिया। सर, आज अपोजिशन पार्टीज के कई लीडर्स जो कि आज मार्च कर रहे थे, उनसे हमारी बात हुई, जिसमें प्रताप सिंह बाजवा भी थे जो कि टेबल पर चढ़े थे। उनसे हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि वो 100 बार ऐसी हरकत करेंगे अगर उनको अपनी आवाज नहीं उठाने दिया जाएगा। अगर इस तरह की खुलेआम धमकी दी जा रही है या ये कहा जा रहा है कि हम करेंगे, तो फिर क्या कार्रवाई की जा सकती है? सर देखिए, एक कहावत है कि चोरी और सीनाजोरी। जो पार्लियामेंट में प्रदूषण फैलाया, उसके बाद सड़क पर प्रदर्शन, और उसमें भी ये कहना कि हम 100 बार इस तरह की हरकत करेंगे, तो इसीलिए जो पीयूष जी ने अभी कहा है कि हम ऐसी कार्रवाई चाहते हैं कि इस तरह के संसद की मर्यादा को भंग करने की कोशिश करने से पहले 100 बार व्यक्ति सोचे। सर, एक पीयूष जी से जो भी आपने कहा कि सभी लोग यही डिमांड कर रहे हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई हो। इसके पहले भी हम लोगों ने लोकसभा राज्यसभा में इस तरह घटना होती थी तो उस देन एंड देयर कोई ना कोई कार्रवाई हो जाती थी, सदन से बाहर किया जाता था या उनकी सदस्यता या जो कोई भी कार्रवाई। इतनी देरी क्यों कार्रवाई होने में, और किस तरह कार्रवाई सरकार चाहती है या बीजेपी चाहती है? ऐसा है, देरी तो नहीं हुई। चेयरमैन ने 4 तारीख को भी कार्रवाई ली थी और मैं समझता हूं कि 9 तारीख और फिर 11, 2 ही दिन बचे थे। तो जैसा मैंने अभी पूर्व मीडिया के हमारे मित्र को कहा कि ये जो उनका भद्दा व्यवहार था, ये जो हिंसक घटनाएं विपक्ष ने की, ये साधारण नहीं थी। और साधारण मिसकॉन्डक्ट के लिए रूल बुक में एक सस्पेंशन का नोटिस दे दो और कर लो। ये असाधारण हिंसक घटनाओं के ऊपर मिसकॉन्डक्ट इतना गहरा था कि इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए इसकी गहराई पे जाना पड़ेगा। सभी सीसीटीवी कैमरास, राज्यसभा टीवी, सबको एक उच्च स्तरीय कमेटी को स्टडी करनी चाहिए। माननीय चेयर से हमने अनुरोध किया है कि वो सब स्टडी करके और देश के सामने सच्चाई आनी चाहिए। देश को पता चलना चाहिए कि ये क्या मंशा से और किस हिंसक सोच है और किस प्रकार का इनका एक एरोगेंस या अपने खुद के ऊपर एक हमारा ही हक है इस देश के ऊपर, ये जो एक परिवार का सोच है, ये इसका पर्दाफाश देश के समक्ष होना चाहिए। सर, पीयूष जी मेरा आपसे सवाल है सर, विपक्ष का ये कहना, अधीर रंजन चौधरी जब बाहर आए तो उनका सबसे बड़ा ये आरोप था सरकार पर कि सरकार जिस तरीके से आनंद फानंद में बिना चर्चा के एक के बाद एक बिल पारित किए जा रही है, विपक्ष को चर्चा के लिए समय नहीं दे रही है, इसकी क्या वजह है? दूसरा, राज्यसभा में जो किसानों के जो मुद्दा आप बोल रहे थे, किसानों पे चर्चा हो रही थी, उनका कहना था कि किसानों के जो हम कृषि बिल पे चर्चा चाहते थे, तो कृषि बिल पे चर्चा नहीं थी। ऐसा है कि दोनों, पहला विषय तो मैं पहले भी बता चुका हूं, चर्चा वो चाहते नहीं थे इसलिए नहीं हो पाई। हम तो लगातार चर्चा के लिए अपील कर रहे थे, चेयर अपील कर रहा था, और वास्तव में तो चेयर की जो अपमान, जिस प्रकार से चेयर का अपमान किया गया 9 तारीख को भी, 11 तारीख को भी, मैं समझता हूं उससे ज्यादा भद्दा बिहेवियर कभी किसी ने देखा नहीं। चेयर के प्रति हम सबकी संवेदना, हम सबका आदर है कि उन्होंने टॉलरेट कर दिया, क्योंकि इतना बुरा व्यवहार चेयर के साथ शायद कभी नहीं हुआ है। पार्लियामेंट में डिसेंट करना, पार्लियामेंट में अपनी बात रखना, पार्लियामेंट में विरोध करना विपक्ष का अधिकार है, लेकिन उस विरोध की भी कुछ शिष्टाचार होती है, उस विरोध में भी एक कोई मेथड होता है। लेकिन जो हमने देखा, मुझे तो लगता है अभी इनके व्यवहार में पार्लियामेंट से लेके अब जो आज का व्यवहार है, ये सब दर्शाते हैं देयर इज अ मेथड इन देयर मैडनेस। ये जो प्रकार से काम कर रहे हैं, जो हाउस में जो प्रदर्शन किया, जैसे लेडी मार्शल्स को मैन हैंडल किया, जैसे पुरुष मार्शल के गला घोटने की, लिटरली स्ट्रैंगुलेट करने की कोशिश की, जिस प्रकार से फेंका गया, एक प्रकार से वो जो बड़ी बुक थी आपने देखी सबने, और ये खुद ही वीडियो निकाल के सामने निकाल रहे हैं। बार बार चेयर को कहते थे हमारा जो प्रदर्शन है, हम जो व्यवहार कर रहे हैं वो राज्यसभा टीवी पे दिखाया जाए, खुद डिमांड करते थे कि दिखाया जाए। मैं तो आज आपके माध्यम से कहूंगा कि राज्यसभा टीवी ने वो सब वारदातें दिखानी चाहिए जनता को, जो खुद ऑपोजिशन फ्लोर ऑफ द हाउस से डिमांड करता था कि हमें क्यों कट ऑफ किया जा रहा है। और आपने देखा वरिष्ठ सांसद
कोई स्पीकर बोल रहा है उसके सामने प्लेकार्ड दिखाना, आगे पीछे चारों तरफ गिरना है। यहां तक कि एक बीजू जनता दल के एमपी ने प्रिविलेज मूव किया। मेरी प्रिविलेज का क्या, मुझे भी नहीं बोला दिया जा रहा है। और बड़े बड़े वरिष्ठ महिला सांसद जिस प्रकार का व्यवहार कर रही थी, उससे क्लियर दिखता है कि वो चर्चा भी नहीं चाहते थे। दे हैड नो लेग्स टू स्टैंड ऑन, उनके पास कोई आर्ग्यूमेंट नहीं था। तो आज ये झूठ के आरोप पे और झूठे आरोप और झूठ आलोचना करके ये गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने ऊपर एक्शन से बचने की आज कोशिश कर रहे हैं। Piyush ji, sir, Polemy from India Today. Mr. Pawar, who met with the chairman today, he has made a comment where he says that in his 55 years of parliamentary career, he's not seen a situation where women MPs have been assaulted, and a very serious charge where he says 40 men and women from outside were brought in as part of parliamentary security. Well, I've just now clarified that Mr. Pawar was wrongly informed, maybe by somebody, he's a very senior leader, but I've just given you the figures. All of the people were Parliamentary Security Service officials, marshals, 12 lady marshals, considering the women members, 18 male marshals, and male security personnel, my apologies, 12 and 18, 30 in total. So their figures are wrong, their allegations are wrong, that they were outsiders who came in. And last but not the least, I would like to urge Honorable Shri Sharad Pawar ji to introspect on the behavior of the opposition throughout the whole parliament session, to introspect whether the parties with which he is standing today, is that what he has seen in 40 years or 55 years of his parliamentary career? Has he ever seen this type of thing? Has he ever gone into the well of the house like this? Has he ever damaged property? He has always prided himself that NCP and his party don't go in the well, don't damage property, don't do unruly behavior. Then how can he condone the unruly behavior of his colleagues and his partners in the opposition? I would like to urge Honorable Shri Sharad Pawar ji to kindly look at the video footage of what has happened over there. Kindly see how the lady marshals were being assaulted. Does he condone that behavior of his opposition MPs, his colleagues? Does he condone the behavior of parliamentary security staff being strangulated? Has he forgotten what he saw on the 9th, tweeted by an honorable MP himself, proudly showing a senior Congress leader throwing the rule book, and not just an ordinary rule book, the one with all the leather on it and the big thick book, flinging it on the Secretary General and the chair. God forbid if it had hurt somebody. What would Shri Sharad Pawar ji say to that? Did he condemn that incident on the 9th? Did we hear a word from him on the 9th? I talked to his colleagues from the NCP even yesterday in the House, and they said, we are going to Mumbai, you finish the House business and adjourn Saturday. Lok Sabha is already adjourned, now finish the business and let's go. So I think Honorable Shri Sharad Pawar ji should introspect on what he has seen, the behavior of his colleagues in the opposition, introspect on what he saw tweeted by his own colleagues in the opposition on the 9th, see it a series of events from the time the Prime Minister was not allowed to introduce his newly appointed ministers, and tell the nation whether he condones this behavior from 19th July to 11th August, whether he agrees with that behavior, whether he believes that it was justified, and whether without the presence of PSS, the Parliamentary Security Service, we could have protected the table office, people who are sitting on the table, whether we could have protected the dignity of the chair. And decisions of this nature are taken by the chair. And I would urge him not to cast aspersions on the chair without going into the merits and the truth of the matter, not get carried away by what some wrong propaganda that may be spread by some of his colleagues. पीयूष जी एक गंभीर आरोप लगाया गया है विपक्ष की तरफ से, सर इधर एक गंभीर आरोप लगाया गया है विपक्ष की तरफ से कि जो मेल मार्शल हैं उन्होंने महिला सांसदों के साथ धक्का मुक्की की, बदसलूकी की, और वो कह रहे हैं कि सेलेक्टिव
जो फुटेज है वो जारी किया जा रहा है, पूरा फुटेज जारी किया जाना चाहिए ताकि देखिए, मार्शल या सिक्योरिटी स्टाफ किसी पक्ष के नहीं होते, ना वो विपक्ष के हैं ना सत्तारूढ़ पक्ष के हैं, वो पार्लियामेंट की सिक्योरिटी का काम करते हैं। और हमने तो किसको अपॉइंट नहीं किया है। ये मेरे ख्याल से इस प्रकार के बेबुनियाद आरोप झूठे हैं और पूरे झूठ के आधार पे ये, मैंने जैसे कहा, ये डाइवर्ट करना चाह रहे हैं, इश्यू से डिविएट कर रहे हैं, क्योंकि उनके ध्यान में आ गया उनका मिसकंडक्ट का पर्दाफाश स्वाभाविक रूप से हो जाएगा। राज्यसभा टीवी, सीसीटीवी कैमराज में सब फुटेज तो होगी, तो वो अपने एक्शन से बचना चाहते हैं। सर, भूपेंद्र जी कुछ कह रहे हैं। जिन महिला सांसद का आरोप लगाया जा रहा है उनका तो फुटेज सामने आ गया, वो तो बल्कि उसका उल्टा है, वो तो खुद मार्शल के साथ हाथापाई कर रही है, और जो महिला मार्शल है उसके साथ बाकी सांसद कैसे किस प्रकार से व्यवहार कर रहे हैं। एक संसदीय आचरण और परंपरा में जो वो कह रहे हैं वो तो वही फुटेज दिख रहा है जिसको वो कह रहे हैं, और कौन सा फुटेज उनको देखना है। तो ये सबसे पहली बात ये है कि एक महिला मार्शल के साथ जो केवल अपनी ड्यूटी करने आई है, जो ड्यूटी के लिए संसद में उपस्थित है, पहली बात तो उसके लिए वेल में क्यों गए, और दूसरी बात उसके साथ इस प्रकार का व्यवहार क्यों किया। क्या किसी भी सांसद को ये आचरण शोभा देता है? क्या ये आचरण शोभा देता है? जो अनुराग जी कह रहे थे, टेबल बैठने के लिए होती है, पढ़ने के लिए होती है, खड़े होने के लिए नहीं होती। डांस करने के लिए कहाँ पे टेबल पर खड़े होने के लिए है? कौन सी दुनिया में, कहाँ, कौन से एटिकेट में लिखा है कि टेबल पे खड़ा हुआ जाता है? किताबें हमेशा ज्ञान लेने के लिए होती है, चेयर पे फेंकने के लिए नहीं होती है। ये कहाँ लिखा है कि संसद के कानून और पेपर पढ़कर के लोगों के हितों की बात करने के लिए होते, फाड़ के फेंकने के लिए नहीं होते। आप आचरण एक के बाद एक देखिए संसद में, ये सारे आचरण कैसे हैं, इसका जवाब कौन देगा? और सबसे बड़ी बात है, जब वो चाहते थे उन्होंने कहा हम डिवीजन करवाएंगे, उन्होंने डिवीजन करवाया। जब वो चाहते थे उन्होंने भाषण दिया। लेकिन जब जनता के हित की बात आती, जब जनता के बिल बनाने की बात आती, जब जनता के लिए कानून बनाने की बात आती, तो वो फिर हंगामा करने लग जाते। तो विपक्ष का ये जो आचरण है, और ये जो आचरण उग्र से अति उग्र होता चला गया, लोकतंत्र में कहीं हिंसा का स्थान नहीं है। संसद विचारों के आदान प्रदान करने के लिए, हाथापाई करने के लिए नहीं है, और हाथापाई भी कभी भी किसी सांसद को कर्मचारी के साथ नहीं करनी चाहिए जो अपनी ड्यूटी पे केवल काम करने आए। Piyush ji, Sunil Prabhu, NDTV. I just wanted to ask you, usually you're a problem solver in trying to find a resolution to issues. In this issue, it was about Pegasus software and whether there should have been a discussion. What was the stumbling block in allowing a discussion on the floor of the House and, finding a resolution on this matter? Well, I think the Honorable Chairman made it very clear that when the government is suo moto coming out with a statement, if there is nothing to hide in that, the whole world knows government has suo moto come out with a statement. There is an established parampara practice in the Rajya Sabha that after the minister's statement, members are allowed to seek clarifications, raise any questions. It would have given ample opportunity to everybody. They did not take that opportunity. They disturbed and this, in an unruly manner, did not allow the House to function. Chairman, even after that, gave an occasion, spoke from the chair and invited that if you all agree, I will ask the minister's convenience and invite him to give clarifications to whatever you have. And I think matters of this nature should be taken with more seriousness than the way they have taken. After look at the bills that were passed, deposit credit guarantee. It gives our depositors in banks insurance cover instead of 1 lakh, 5 lakhs. And within 90 days you get paid. Juvenile justice, it helps our children. Bill on limited liability partnership and insolvency, which will help MSMEs. There was a constitutional scheduled tribes order amendment bill, which affects the scheduled tribes of Arunachal Pradesh. Every one of the bills was in public interest, would have helped the country to progress, but sadly, even a bill to set up a central university in the Union Territory of Leh Ladakh was not accepted by them for a good discussion. I deplore and condemn the behavior of the opposition.